you the classification of the plant kingdom. We have classified the plants into two different ways. The olden classification that was based on the tracheal system, whether the tracheal system is present or absent. In those with the tracheal system is present, it is known as the Tracheophyta, and Tracheophyta included Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. And non-Tracheophyta के अंदर दो आए थे, that is algae and Bryophyta. ठीक है, but later on scientists found it when they were studying and they wanted to classify the organs on the basis of their reproductive structure. They came to know that the pteridophytes do not have any reproductive structure visible. So they have classified the organs on the basis of visible reproductive structure and invisible reproductive structure. Those which are having non-visible reproductive structure, they can name them as the cryptophytes, cryptogames and cryptophyte or cryptogame, whatever you want to say. तो cryptogames में जो है तीन कैटेगरीज आ गए हैं ना, algae आए हैं, bryophyte आए हैं, pteridophyte है. तो pteridophyte from the tracheophytes is now placed into the cryptogame, and phanerogames के अंदर दो आई हैं, that is gymnosperm and angiosperm. So in present time we are following this classification, that is a classification based on the reproductive structure. Now उनमें जो है सबसे पहला है that is algae. Algae was actually included in Thallophyta earlier, and Thallophyta के अंदर दो categories थी, that is the algae and fungi. Now since fungi is already removed from here and placed into a separate kingdom called kingdom fungi, hence now in this Thallophyta only algae is left. तो अब आप चाहे उसको algae कह दो, चाहे आप उसको Thallophyta कह दो, it is same. Okay, so algae is Thallophyta, Thallophyta is algae. Is it clear? Now if you just observe, you will find that there is a lot of changes taking place in the science of classification, and that is what I already explained you, that in the science of classification only one thing which is true, that is the species. बाकी सारी चीज़ों की जगह बदल सकती है. Earlier it was only 2 kingdom classification, then 3, 4 and 5 kingdom classification came. अभी कई सारी जगहों पे कुछ और classification चल रहे हैं. फिर algae के अंदर हमने blue green algae, that is वो बैक्टीरिया को भी नाम ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया था. वी आवरसेल्फ कंफ्यूज्ड आवरसेल्फ, ठीक है. वेयर इज द ब्लू ग्रीन एल्गीज आर नो मोर एल्गी, ठीक है. एंड देन अगेन इन द थैलोफाइटा वी आर इंक्लूडेड एल्गी प्लस फंगाई, जबकि अब मालूम पड़ा कि फंगाई को हमने अलग किंगडम दे दिया. सो देयर इज लॉट ऑफ रीशफलिंग हैज टेकन प्लेस, बट today what we got a classification, it is a much better classification, clean classification in which the doubt is less and the more similarities are there. तो उसके अंदर सबसे पहला हम बात करेंगे एल्गी की. एल्गी कौन से प्लांट्स है? एल्गी आर दोज प्लांट्स विच आर मोस्ट सिंपलेस्ट. मोस्ट सिंपलेस्ट मीन्स देयर इज नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो सिस्टम. इट इज सिंपली सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है. उसके अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट किंगडम की पहली परिभाषा आपने कहा था मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है. मल्टी सेलुलर होना चाहिए, तो एल्गी भी मल्टी सेलुलर है. ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं. और क्या बोला था मैंने तीसरा, वो यूकैरियोटिक होना चाहिए. तो उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्लोरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर सेल ऑर्गेनेली शुड बी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट. एल्गी के बारे में पढ़ते हैं. देखिए 3.1 दैट इज एल्गी. क्या कह रहा है ये? एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म. काफ़ी बड़ी लाइन है, एक एक वर्ड को ऑपरेट करते हैं. क्लोरोफिल बेयरिंग, दैट इज ग्रीन इन कलर, और ग्रीन नहीं हो तो कोई और होगा, पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज देयर. देन सिंपल, दैट इज देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम. एंड ठीक है, थैलॉइड मतलब इट्स सिंपली अ बॉडी जो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है. ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोज विच कैन प्रिपेयर फूड देयर ओन. लार्जली एक्वेटिक, मिलेंगे पानी के अंदर, बट जरूरी नहीं है कि दे आर ऑलवेज फाउंड इन वाटर. दे फाउंड इन वाटर, दे विल बी फाउंड इन द मॉइस्ट प्लेसेस, दे विल बी फाउंड इन द ह्यूमिड प्लेसेस, दे मे इवन बी फाउंड इन द ट्री ट्रंक्स, जो गीली जगह पर रहते हैं. दैट इज इफ यू गो टू द हिली एरियाज यू विल फाइंड दैट वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर रहता है. एंड इन दैट केस यू विल फाइंड दैट द ट्री ट्रंक इटसेल्फ इज कवर्ड बाय एल्गी एंड दे आर ग्रीनिश, ठीक है. तो ये वो वाले स्ट्रक्चर हैं जो कि इन जगहों पे मिलेंगे. आप बारिश के दिनों में देखे होंगे कहीं पे भी जहाँ थोड़ा पानी गिरता हुआ कहीं जम जाती है, कई बार हम गिर जाते हैं इन पर फिसल करके, ठीक है. तो वो रॉक्स हो सकते हैं, वो छत के छज्जे हो सकते हैं, वहाँ पानी का टैंक जहाँ पे लीक करता है उस जगह पे, इन सब जगहों पे एल्गी आ जाती है. दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, बोर्ड एक्सेट्रा. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द फंगाई, जैसे लाइकेन है, ठीक है. लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंगाई. So we already studied about lichen in the previous chapter, that is chapter 2, and
इसके अलावा वो कुछ एनिमल्स पे भी मिल सकते हैं, जैसे स्लॉथ बेयर पे द बॉडी इज मॉइस्ट और उसके ऊपर भी एल्गी लग जाता है. द फॉर्म एंड द साइज ऑफ लार्वली आर highly variable. You may find a single cellular, unicellular algae like Chlamydomonas. However, Chlamydomonas is not entitled to kept in the algae anymore. Now उसको हमने प्रोटिस्टा के अंदर भेज दिया, ठीक है. तो वो है then the multicellular but there is only each cell is independent. तो वो उनको हम कहेंगे कॉलोनियल. जैसे अपनी कॉलोनी होती है, कॉलोनी के अंदर 50 मकान है, ईच हाउस इज इंडिपेंडेंट. उसको पड़ोस के घर से कोई लेना देना नहीं होता है. दे आर नॉट एक्सचेंजिंग एनीथिंग इन बिटवीन. दे आर नॉट डूइंग एनी फेवर फॉर द नेबरिंग सेल. वैसे ही जो है वॉल्वोस है, इट इज़ सिंपली अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ईच सेल इज इंडिपेंडेंट इन देयर ओन. तो ऐसे भी हो सकते हैं मल्टीसेलुलर. फिलामेंटस भी हो सकते हैं, वो अनब्रांच हो सकते हैं, दे में बी ब्रांच इवन, दे में डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स. तो बहुत सारा स्ट्रक्चर में आपको वेरिएशन मिलेगा. तो देखिए यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक Chlamydomonas, colonial form like Volvox, filamentous form like Ulothrix and Spirogyra, and the marine algae which may be such as kelp and all, they have massive body and the body size may go up to 100 meters. ठीक है, कुछ एल्गे जो हैं वो 100 मीटर तक की हो सकते हैं. दे आर इन द डीप सीज एंड वो इतनी ज़्यादा होती हैं, मतलब डीप सी मतलब वो दे अवे फ्रॉम द सी है, शोर से अलग, लेकिन होंगे ऊपर ही बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए. तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं और इतने लार्ज नंबर में होते हैं कि इफ़ बाई चांस शिप ऑल्सो रीच देयर तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसके प्रोपेलर में जाके फंस जाते हैं एंड देन द प्रोपेलर कैन नॉट मूव एनी मोर एंड द शिप विल बी लाइक दैट विल बी इमोटाइल, वो फंस जाएगा वहाँ. आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन. तो एल्गी जो है वो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज असेक्सुअल स्पोर्स से दिखा सकते हैं या फ्रैगमेंटेशन से. फ्रैगमेंटेशन हमने पढ़ा कि द बॉडी ऑफ एल्गी इज मल्टीसेलुलर एंड ऑल द सेल्स आर अलाइक, नो डिफरेंशिएशन. कोई इसमें कोई किसी सेल ने कोई खास तरह का स्ट्रक्चर नहीं अक्वायर कर रखा. तो यू कैन ब्रेक देम इनटू एनी नंबर. ईच पीस विद मिनिमम 1 लिविंग सेल विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ न्यू इंडिविजुअल देयर एंड देन. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज विद फ्रेगमेंटेशन. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स ऑल्सो. अब वो जो स्पोर्स हैं अगर उनमें फिलामेंट मिल रहे होंगे तो हम उनको जूस्पोर कहेंगे, अगर नहीं मिल रहे होंगे तो हम उनको अप्लानोस्पोर कहेंगे. तो देखिए दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज न्यू प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमीट से होता है ना. गैमीट्स में भी खासियत है, कई बार क्या होता है द बोथ द गैमीट, द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट लुक अलाइक. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है. लाइक मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गन वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि स्पर्म जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एग होते हैं वो बड़े होते हैं, स्पर्म आर मोटाइल, एग्स जो है नॉन मोटाइल एंड ऑल. ठीक है, बट हियर द टू टाइप ऑफ स्पोर्स आर गैमीट्स आर देयर विच में बी एग्जैक्टली अलाइक. देखिए उसको हमने क्या नाम दिया, आइसोगैमीट. वर्ड आइसो यू नो दैट इज सेम. हाँ, और अगर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं तो उनको एनाइसोगेमस कंडीशन का है. एनाइसोगेमस में अगर अंडा बड़ा है और स्पर्म छोटा है तो उसको oogamous कंडीशन कहते हैं. तो ये 3 हैं यहाँ पे नाम, जिनको बड़े बड़े शब्दों में डार्क में ब्लॉक बोल्ड में लिख रखे हैं, उनको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. यू कैन सी हियर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, दैट इज द वॉल्वॉक्स विच इज सिंपली अ कॉलोनी. ये Chlamydomonas है, ये कारा है. वर्ड को याद रखना, कारा, CHARA. देखिए नीचे पढ़ देता हूँ मैं क्या लिखा, कारा. ये रहा. थर्ड वन वॉज कारा. प्लीज डोंट रीड इट एज अ चारा, ये कोई लालू का चारा नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज द ब्राउन एल्गी, है ना. देन ये लेमनेरिया एंड ये फ्यूकस और ये है डिक्टाइटा. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको सब तरह के मिल रहे हैं. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल वन एंड फिलामेंटस वन एंड द ब्रांच वन एंड द अनब्रांच वन एंड द यू स्ट्रक्चर. आगे बात करते हैं. एल्गी आर यूजफुल टू ह्यूमन इन मेनी वेज. बहुत काम की चीज़ है एल्गी. कैसे है काम की, देखिए एल्गी सबसे बड़े तो काम क्या आ रहा है, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द सी. समुद्र में आपको कोई ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे, नीम के पेड़, आम के पेड़ एंड अदर पेड़. वहाँ पे जितने भी हैं प्रोड्यूसर्स वो कौन है, ये एल्गी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सी दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द प्राइमरी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स. फूड भी वही बना रहे हैं, ऑक्सीजन भी वही बना रहे हैं.
ठीक है। सेकेंड, उसके अलावा क्या है, एल्गी जो होते हैं, कई सारे एल्गी जैसे एल्जिन, उनमें से एक खास तरह का सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कहते हैं एगार। एगार इज यूज्ड इन द थिकनिंग ऑफ ग्रेवी। कई सारी सब्जियां ऐसी आती हैं जिसकी सब्जी अगर हम घर में बनाएं तो वो बिल्कुल पतली पतली से बनती है, होटल में जाते हैं तो अच्छी थिक मिलती है, तो वो क्या है, दे जस्ट ऐड है क्वार्टर स्पून ऑफ एल्जिन, है ना, या एगार। Similarly, ice creams which you get from the market, it is no more cream, no more ice, ठीक है। वो सिंपली मिल्क होता है और मिल्क के अंदर वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट एनहांसर डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, एंड दे पुट लिटिल बिट ऑफ एगार, सो वो गाढ़ा सा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एल्जिन जो दे रखा है, ये कैरागेन दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक कुछ इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होंगे एंड ऑल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। हाफ कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप ज़मीन जो है वो 1/3 ही है पूरी अर्थ के ऊपर, ओनली 1/3 पार्ट इज लैंड एंड 2/3 पार्ट इज वाटर। 2/3 पार्ट के अंदर जो है एल्गी है वो भी मिला करके हाफ ऑफ द अर्थ टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्शन बना रहे हैं। क्यों? बिकॉज एल्गी इज फाउंड ओनली इन द सुपरफिशियल रीजन, नीचे जाएंगे तो लाइट नहीं पहुंचती एंड द फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। जबकि लैंड पे जो है स्ट्रेटिफाइड प्लांट आपको बड़े बड़े ह्यूज पेड़ मिलेंगे 300 फीट तक के, एंड ईच लीफ विल बी कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। 300 फीट की डेप्थ में जाकर लाइट जाएगी नहीं कभी, so there is no photosynthesis possible, and that is why more photosynthesis take place on land. So algae, they are there, but all together the algae cannot produce more than 50% of the oxygen. चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, being photosynthetic they increase the level of dissolve oxygen in their immediate environment, that is aquatic environment. तो जितनी भी पानी में रहने वाले जलचर हैं, that is all the aquatic animals, they are living on the oxygen produced by these algae only. There is no other type of plant, कोई दूसरा प्लांट तो मिलता ही नहीं है पानी के अंदर, समुद्र में कम से कम, ठीक है। आपको पूल्स में, पॉन्ड्स में मिल जाएंगे, लेक्स में मिल जाएंगे, शैलो वाटर बॉडी के अंदर आपको मतलब रूटेड प्लांट्स में मिल जाएंगे, बट इफ यू हैव टू सी इन द सी यू विल नॉट फाइंड वाटर आइसियन देयर, यू विल नॉट फाइंड एनी अदर टाइप ऑफ डीप सी प्लांट ट्रीज एंड ऑल, इसलिए वहाँ पर सिर्फ एल्गी है। नाउ दे आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स which forms the basis of food cycle in the aquatic animals. तो जो वेल होती हैं बड़ी बड़ी टन्स के अंदर उनका वजन है, दे आर ईटिंग ओनली दिस एल्गीज, ओके, सो देयर प्राइमरी फूड इज दिस ओनली। इसके अलावा क्या, मैनी स्पीशीज लाइक पोर्फेरिया, लेमनेरिया एंड सोरगोसम, ये हमारा खाना है, ठीक है, आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ द मैराइन एल्गी विच आर यूज्ड एज फूड। देयर आर नंबर ऑफ रेसिपीज इन विच दीज थिंग्स आर यूज्ड, ठीक है, एज ए होल और देयर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एंड दे आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन ऑल्सो। समुद्र में मिलने वाले प्लांट जो होते हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, तो ये भी एक उसका फैक्टर है। एल्जिन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। दे आर यूज कॉमर्शियली, एगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एंड दे आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। तो ये एक्सपेरिमेंट जितने भी हम करेंगे वहाँ पे हमको कल्चर की जरूरत पड़ती है, एंड द कल्चर इज एक्चुअली डन इन द एल्जिन, ठीक है। इसके अलावा आइसक्रीम, जेलीज वगैरह, करी थिकनेस वगैरह के लिए काम आ रहे हैं। ना क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गी, एंड बहुत सारे दूसरे हैं, ये जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आपने स्पिरुलिना का नाम सुना है, स्पिरुलिना एंड क्लोरेला एंड अदर एल्गी, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड दे आर कंटेनिंग मच मोर हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन देन दी एग्स एंड मिल्क एंड ऑल, ठीक है। एंड इट इज़ द स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है, हाईली प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट प्रोटीन, सिंगल टीस्पून ऑफ प्रोटीन इज इनफ फॉर होल डे, है ना। तो वो सारे जो है इन्हीं से बनाते हैं एल्गिन्स, तो रिच इन प्रोटीन एंड फूड सप्लीमेंट। ये जितने भी लोग जिम वगैरह में जाते हैं, आप में से कोई जाता है, अंश यादव तो जाता है कि जिम में, तो अगर ठीक, कोई बात नहीं, अगर जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो फूड सप्लीमेंट के डब्बे मिलते हैं, दे आर नथिंग बट देज आर एल्गी, स्पिरुलिना एंड ये क्लोरेला एंड ऑल, इनसे मिलने वाली एल्गी होती है। तो उनमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं रहता, दूध के साथ में मिला करके उनको खा जाओ, ठीक है। अच्छा, अब एल्गी को हमने क्लासीफाई कर दिया इनटू 3 कैटेगरी, क्लोरोफाइसी दैट इज रेड इन कलर, फाइकोफाइसी विच इज क्लोरोफाइसी विच इज ग्रीन इन कलर, फाइकोफाइसी दैट इज रेड ब्राउन कलर, एंड द रोडोफाइसी विच इज रेड इन कलर। तो इनके कलर के हिसाब से हमने इनको नाम दे दिया।
सबसे पहले वी स्टडी अबाउट क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्गी, सबसे ज़्यादा मिलने वाले एल्गी है ये. दे आर गॉट अराउंड 7000 स्पीशीज. ठीक है. एंड दे आर वेरी क्लोज टू द लैंड प्लांट्स. तो इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वी कैन से फ्रॉम द ग्रीन एल्गी ओनली द लैंड प्लांट्स हैव कम इनटू बीइंग. तो देखते क्या लिखा. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी एंड दे आर द प्लांट, दे प्लांट बॉडी आर आइदर यूनिसेलुलर और कोलोनियल और फिलामेंटस. तीनों के एग्जांपल मैं अभी आपको बार बार बता चुका हूँ. दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी. एंड दिस इज दैट सेम क्लोरोफिल विच इज फाउंड इन ऑल दीज लैंड प्लांट. जो भी हमारे आसपास जो भी प्लांट दिख रहे हैं इनमें सब में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलेंगे. सी, डी एंड ई आर नॉट फाउंड देयर. दे मे बी देयर बट इन अ फ्रैक्शन. ठीक है. The pigments are also localized in defined chloroplast. ठीक है. Unlike in the protista we have studied, वहाँ क्लोरोफिल तो मिल रहा होगा, पिगमेंट तो मिल रहा होगा, बट they never had chloroplast like structure. ठीक है. But they have. ठीक है. इसके अलावा क्या है, द क्लोरोप्लास्ट में भी ऑफ डिफरेंट शेप. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको. देर आर डिफरेंट स्पीशीज इन विच द क्लोरोप्लास्ट में अक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप. जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है, कुछ में डिस्क शेप में मिलेगा, किसी में प्लेट शेप का मिलेगा, किसी में रेटिकुलेट, किसी में रिबन शेप, ठीक है, किसी में कप शेप. यूरोथ्रिक्स है विच इट इज फाउंड इन द कप शेप. द रिबन शेप स्पायरोगैरा के अंदर मिल रहा होगा, स्पाइरल. ठीक है. एंड दैट इज वाई द नेम स्पायरोगैरा इज कम टू दैट. ठीक है. तो इस तरह से वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी विच आर कॉल्ड पायरिनोइड. दिस पायरिनोइड इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टार्च. ठीक है. तो पायरिनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. सम एल्गी में ऑल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. किसी में, नॉट इन ऑल. Green algae usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. ये याद रखिए आप. ठीक है. cell wall. वो एक टेबल ऑफ डिफरेंस इज गिवन इन द लास्ट दैट वी विल जस्ट स्टडी. अभी आप इनको केवल इतना सा याद रखिए कि स्पेशलिटी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल 7000 स्पीशीज. सेकेंडली ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. तीसरी बात आपको मिल रहा है सेल वॉल जो है वो किसका मिल रहा है, सेलुलोज का मिल रहा है, प्लस एक्सटर्नल लेयर जो है वो पैक्टिंग की मिल रही है. क्लोरोप्लास्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप. पायरिनोइड इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है विच इज मेनली कंटेनिंग प्रोटीन प्लस स्टार्च. ठीक है. सम ओनली फ्यू एग्जांपल्स आर देयर वेयर द ऑयल इज देयर. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वही फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा या स्पोर से हो जाएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लैजिलेटेड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर. ठीक है. जिनको हम नाम दे देंगे प्रोड्यूस ज़ूस्पोरेंजिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों टाइप में से किसी भी टाइप के हो सकते हैं. एनाइसोगेमस, आइसोगेमस और ओगेमस टाइप ऑफ कंडीशन. ठीक है. तो वो हो सकते हैं. सम ऑफ द कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉल, सिलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा. ठीक है. तो ये सारे आप चीज़ याद रखिए. नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी. ये ग्रीन एल्गी जो थे वो सब तरह के पानी के सोर्स में मिल रहे हैं. एनीवेयर you will find in the sea, you will find in the backwater, you will find in the lake, you will find in the pond, you will find on the above terrace. जो हमने वाटर टैंक रखा उसके ऊपर कहीं भी बारिश में थोड़ा छत गीली हो जाती है वहाँ पे एल्गी लग जाती है. टैंक के नीचे जहाँ पानी चू रहा वहाँ मिल जाएगी. नालियाँ हैं वहाँ पे आपको ग्रीन एल्गी मिल जाएगी. स्टैग्नेंट वाटर वेरेवर इट इज़ यू विल फाइंड ग्रीन एल्गी. ठीक है. तो ग्रीन एल्गी इज़ द मोस्ट वाइडली क्या कहते हैं स्प्रेड एल्गी. उसके बदले में ब्राउन एल्गी के बारे में बात करते हैं. क्या लिखा है, द मेंबर्स ऑफ फाइकोफाइसी और द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन द मैराइन हैबिटेट. तो आप अपने घर के बाहर नाली में ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, छत पे ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे. ऐसा नहीं है. आप ग्रीन एल्गी के लिए तो क्या है, एक मग में पानी भर के छत पर रख दीजिए, 4 दिन बाद आपको उसमें एल्गी मिल जाएगी. ठीक है. बिकॉज द स्पोर्स आर देयर इन द एयर एंड दे विल फॉल इनटू इट एंड दे विल सो जो वाटर टैंक कभी साफ नहीं होता उनमें प्लेंटी ऑफ एल्गीज आते हैं. ठीक है. बट ब्राउन एल्गी नहीं मिलेंगे. दे शो ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म. बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज. ठीक है. दे मे रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म लाइक एक्टोकार्पस टू प्रोफाउंडली ब्रांच फॉर्म which may represent by the kelp and which may reach up to a height of 100 meters. अब हाइट मतलब यूँ नीचे से ऊपर नहीं हो रहे हैं, ये रहेंगे तो हॉरिजॉन्टली. ठीक है. तो दे आर इन द सीज और वो उनके जो ब्रांचेस हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी जो क्या कहते हैं फिलामेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं 100 मीटर के. अगर कहीं बाई चांस कोई जहाज वहाँ पहुँच गया तो वो निकल नहीं सकता, वो उसमें फंस के रह जाएगा. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ दे पोजेस क्लोरोफिल A+C. ग्रीन में क्या थे A+B.
यहाँ पे क्या है, A एंड C, B इज नॉट देयर। एंड इसके अलावा केराटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स आर देयर। तो ये केराटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स विद द क्लोरोफिल दे कम इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गिव देम ब्राउन कलर। अब ये ब्राउन इज नॉट एक्चुअली ब्राउन, कुछ पर्पलिश कलर, कुछ इस तरह से कलर होते हैं, हम उनको ब्राउन कह देते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट ब्राउन। ये मत सोचिए जैसे आपके पास कोई ब्राउन शर्ट है या ये जो रिबन का शेप है कि इस तरह की एल्गी होगी, ऐसा कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। ब्राउन इज नॉट एग्जैक्ट ब्राउन, बट देर आर वेराइटी ऑफ ब्राउन, है ना। तो वो ग्रीन से लेकर के पर्पल तक सारे कलर मिलेंगे। तो देखिए क्या लिखे, शेड्स ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ेंथोफिल्स प्रेजेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन दैट। तो दे कलर में स्टार्ट फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू द वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ओके, नाउ बिसाइड दिस द पिगमेंट जो है वो ज़ेंथोफिल पिगमेंट। अच्छा, फ्यूकोजेंथिन इज प्रेजेंट इन देम। वो जो पिगमेंट है उनको सबको मिला के फ्यूकोजेंथिन कहा जाता है। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में भी लेमिनेरियन और मैनिटॉल, दो तरह के हैं, ठीक है। आइदर दे आर कॉल्ड लेमिनेरियन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल हैज सेलुलोस्टिक सेल वॉल एंड दे में हैव ए जिलेटिनस कोटिन ऑफ एल्जिन। अब ये जिलेटिनस कोटिन एल्जिन का क्या रोल है, देखिए समुद्र में ये कहीं रॉक्स वगैरह पर लगे हुए रह सकते हैं। एंड द हाई टाइड लो टाइड कम्स एंड गोज, समटाइम 8-8 घंटे के लिए जो है वो एक्सपोज हो गए एयर में। इट मे बी पॉसिबल दैट द एल्गी में ड्राई, समुद्र में हवा भी ज़्यादा चलती है तो वो ड्राई हो सकते हैं। तो ये एल्जिन क्या करते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने, ठीक है, एंड दैट विल नॉट लेट देम टू ड्राई। तो ये और इसी को फिर हमने निकाल लिया आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, वो सूखने नहीं देता उसको फैलने नहीं देता, उसको गाढ़ा सा बना देता है, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू द प्लास्टिड a centrally located vacuole and nucleus। जो फर्स्ट सेल होगी जो किसी रॉक से चिपक के रखती है उसको होल्डफास्ट कहते हैं, एंड द अदर पार्ट जो होंगे उनको हम स्टार्च करेंगे। द स्टाइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन। तो ये सिर्फ नेम्स हैं, आप उनको अलग अलग तरीके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पोर्ट्स, जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर यूनिफॉर्म है सभी के अंदर। एसेक्सुअल सेक्सुअल वही 3 तरह के गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं। एनाइसोगेमस अलग अलग तरह के मिल रहे हो, आइसोगेमस एक जैसे मिल रहे हो, या oogamous। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर, वो चांस है दैट इज व्हेन द फर्टिलाइजेशन व्हेनेवर द फ्यूजन विल टेक प्लेस, तो वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं एंड देन दे विल गिव क्या कहते हैं ज़ाइगोट एंड देन एनी प्लांट कैन प्रोड्यूस। कॉमन एग्जाम्पल जो दे रखा हूँ एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सॉर्गेसम एंड फ्यूकस, याद रखिएगा। लास्ट है रोडोफाइसी, 4 मिनट है उसमें तो ख़त्म कर दो। एल्गी रोडोफाइसी क्या है, ये रेड एल्गी। रेड एल्गी आपको बैक वाटर, सी वाटर एंड दूसरे पानी में भी मिल सकती है। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, जिसको हम कहेंगे आर फाइकोइरिथ्रिन। वर्ड इरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइड रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रिन रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। फाइको तो प्लांट के लिए होते ही है, तो आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन with the greater concentration found in the warmer areas, but they also occur in both well lighted regions of the close and surface to the water। तो आप पॉन्ड में भी मिल जाएंगे, पूल्स में भी मिल जाएंगे, इन द बैक वाटर ऑल्सो स्टाफ ये, तो उन सब जगहों पर आपको मिल सकता है। द स्ट्रक्चर इज थैलस लाइक, तो उसको थैलाई लिखा है, थाली मत सोचिएगा इसको, ठीक है। विल कॉल इट थैलाई। The red thalli of most of the red algae are multicellular and some of them have complex body organization, ठीक है, वो highly divided और इस तरह से हो सकते हैं। The food is stored in the form of Floridian। अब आपको डिफरेंस मिल रहा है, इसमें फ्लोरिडियन मिल रहा है, उसमें मैनिटॉल मिल रहे थे। ग्रीन एल्गी में समवट स्टार्च टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस मिलेंगे, टेबल में दे रखे नीचे। The red algae are usually reproduced by vegetative fragmentation।
ठीक है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल्स, तो बाकी सब में मोटाइल थे, जूस्पोर का था, इसमें नॉन मोटाइल है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल 3 टाइप ऑफ गैमेट, जैसे अपन अब तक पढ़ते हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अकम्पेनिड बाय मोस्टली इन द वाटर, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन। और इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलिस्पोरिना, पोरफायरा, ग्लेसेरिया एंड जेलिडियम। ये टेबल याद कर लीजिए, वो इतने 3 पैराग्राफ जो हमने पढ़े उसकी पूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी समरी यहाँ पर आ गई है। क्या है? रेड, सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी देखिए, क्लोरोफाइसा, क्लोरोफाइसी कौन कौन से पिगमेंट मिल रहे हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लैंड प्लांट। फूड स्टोर्ड इन स्टार्च विच इज सिमिलर टू द लैंड प्लांट। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना है विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लैंड प्लांट। ऑफ कोर्स पेक्टिन इज ऑल्सो देयर। एंड देन फ्लैजिलर, जो उनके क्या कहते हैं गैमेट्स मिलेंगे, उसमें क्या पोजीशन है? दैट इज 2 से लेकर 8 तक है ना, वो एपिकल मिल सकते हैं। हैबिटेट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? तो दे आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, हर तरह के पानी में मिलेंगे। फाइकोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी, उनमें क्लोरोफिल ए मिल रहा है और सी मिल रहा है, और एक और तरह का पिगमेंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंटिन, बिकॉज ऑफ दैट इज ब्राउन इन कलर। फूड स्टोर्ड इन मैनिटॉल और लेमनेरियम, ठीक है, ये इनका स्टार्च अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। सेलुलोज एंड एल्जिन, एल्जिन इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ड्राइंग, तो वो म्यूकस मतलब काफ़ी हद तक वो पानी को सोख करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। और ये इनका फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला अनइक्वल लेटरल मिलेंगे साइड में, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे भी मिल रहे हैं ये आपको? फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेंगे, बैक वाटर एंड सी वाटर में आपको मिलेंगे, वार्म सीज वगैरह में। एंड द लास्ट वन इज रेड एल्गी विच आर हैविंग पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है, बी सी एंड डी, ऐसे याद रखना। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है क्योंकि रिएक्शन सेंटर ए में होता है, हम पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस इन एनी प्लांट, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर उसी में मिलता है। ए इज देयर कॉमन। ग्रीन एल्गी में बी मिल रहा है, ब्राउन एल्गी में सी मिल रहा है, रेड एल्गी में डी मिल रहा है ना। फूड क्या है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं यहाँ? फ्लोरिडियन स्टार्च में। एंड सेलुलोज एंड पेक्टिन यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको ग्रीन एल्गी में मिल रहे थे। एंड यहाँ पिगमेंट फ्लैजिला जनरली नहीं होते, हमने अभी अभी पढ़ा था नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स आते हैं। एंड कहाँ पे मिल रहे हैं ये आपको हर तरह के वाटर्स में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, बैक वाटर में भी मिल रहे हैं, सी वाटर में भी मिल रहे हैं एंड ऑल। So with this we come to the end of algae. Children, we'll start with the Bryophyta. कल करा दूंगा Bryophyta भी मैं, ठीक है, और फिर Pteridophyta and all अपन after the exam पढ़ेंगे. So that's all.